السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ گرامر کی پہلی کلاس ہے۔ اس میں ہم اردو گرامر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قواعد کسے کہا جاتا ہے؟ تو زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان اصولوں اور ضابطوں کو قواعد کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی بھی زبان ہو، ہم جیسے ہندی زبان پڑھتے ہیں یا اردو زبان پڑھتے ہیں یا عربی زبان پڑھتے ہیں یا انگلش پڑھتے ہیں، تو ان تمام زبانوں کو اچھی طریقے سے لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھ کر کے ہم اس زبان کو اچھی طریقے سے لکھ اور بول سکتے ہیں۔ تو قواعد کسے کہا جائے گا؟ قواعد کہا جائے گا ان اصولوں اور ضابطوں، اصول اور ضابطے سے مراد یہ ہے کہ ان رول اور ریگولیشنز کو قواعد کہا جائے گا، جن کو بنیاد بنا کر کے ہم، چاہے وہ جس زبان کا بھی قواعد ہے، چاہے وہ ہندی ویاکرن ہے یا انگلش گرامر ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اس زبان کو اگر ہم صحیح طریقے سے لکھ اور بول لیتے ہیں تو ان اصولوں اور ضابطوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد کہا جاتا ہے۔ دوسری تمام زبانوں کی طرح جس طریقے سے ہندی ویاکرن ہے، انگلش گرامر ہے، سمجھے، یا فارسی قواعد ہیں یا عربک کے قواعد ہیں، اسی طریقے سے ہماری اردو زبان بھی چونکہ ایک ترقی یافتہ زبان ہے اور اردو زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے پہلے سے مقرر ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھ کے، ان اصول اور ضابطوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اردو زبان کو صحیح لکھ سکتے ہیں اور صحیح بول سکتے ہیں۔ اردو قواعد کا تعلق کس سے ہے؟ انہی اصولوں اور ضابطوں کی تشریح سے ہے۔ اب اردو قواعد میں ہوتا کیا ہے کہ ان اصولوں اور ضابطوں کی ہم کیا کرتے ہیں؟ تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ اردو سے متعلق جتنے بھی گرامر سے ہیں یا جو بھی رول اور ریگولیشنس ہیں، تو اس پورے گرامر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، پھر ان چیزوں کا ہم صحیح لکھنے اور بولنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اردو گرامر کے تحت کن کن چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں؟ تو ہم پڑھتے ہیں حرف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور حرف کے بارے میں کیا کیا پڑھتے ہیں مختصراً ہم بتا دیں۔ جیسے حرف ہے، حرف کی قسمیں ہیں، حرف کی تعریف ہے، پھر حرف سے مل کر کے لفظ کس طریقے سے بنتا ہے، لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی کیا تعریف ہے، پھر لفظ سے دوسرے الفاظ کس طریقے سے بنتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ پھر لفظ آپس میں جڑ کر کے جملہ کیسے بنتا ہے، ان کو پڑھتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم باری باری کر کے اردو گرامر میں پڑھتے ہیں اور انہی چیزوں کو ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ تھوڑی سی بات تھی جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ قواعد کسے کہا جاتا ہے۔ تو قواعد ان رول ریگولیشنز کو کہا جاتا ہے جس کو بنیاد بنا کر کے ہم کسی بھی زبان کو صحیح لکھ اور بول سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اردو قواعد کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو قواعد بھی انہی اصولوں اور ضابطوں کو کہا جائے گا جن اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر ہم اردو زبان کو صحیح لکھ اور بول سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ اردو قواعد کے 5 اجزاء ہیں۔ اردو قواعد کے کتنے اجزاء ہیں؟ چونکہ اردو قواعد جو ہے، تو اردو قواعد میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے، تو ان موضوعات کو بنیاد بنا کر کے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ سوال بھی آ چکا ہے، اگر آپ کو پوچھا جائے کہ اردو قواعد کے کتنے اجزاء ہیں تو بھی آپ جواب یہی دیں گے کہ 5 اجزاء ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ اردو قواعد کی کتنی قسمیں ہیں یا کتنے حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہجہ یعنی علم ہجہ، نمبر 2 علم صرف، نمبر 3 علم نحو، نمبر 4 علم بیان، نمبر 5 علم عروض۔ اب یہ ہے کہ علم ہجہ میں کیا ہوتا ہے؟ تو علم ہجہ میں حروف اور حرکات کا بیان ہوتا ہے۔ تو علم ہجہ میں جتنے بھی حروف ہیں، الف با تا، ان کی قسمیں اور حرکات، زبر زیر پیش وغیرہ، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد علم صرف میں جو حروف سے مل کر کے جو لفظ بنتا ہے، ان لفظوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ پھر لفظ سے جو دوسرے الفاظ کس طریقے سے بنتے ہیں،
जिसको मुश्तक कहा जाता है, उसके बारे में बातें की जाती है। यानी लफ्ज़ की जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों के बारे में इल्म सर्फ़ में डिस्कस किया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है इल्म नहव। इल्म नहव इसके तहत जुमले के अज्जा, उनकी तकसीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और तरतीब का बयान होता है। तो इल्म नहव में क्या होता है कि लफ्ज़ से मिलकर के जो जुमला बनता है, तो उन जुमले के अलग अलग जो अज्जा होते हैं, उन जुमलों की जो तकसीम होती है, उन जुमलों का बाहमी जो ताल्लुक़ और तरतीब होता है, उन सब चीज़ों के बारे में इल्म नहव में बात की जाती है। तो खुलासे के तौर पे हम यूँ समझ सकते हैं कि इल्म हज्जा में लफ्ज़ के बारे में और इल्म सर्फ़ में ये इल्म हिज्जा में लफ्ज़ नहीं बल्कि इल्म हिज्जा में हर्फ़ के बारे में, इल्म हिज्जा में हर्फ़ के बारे में और इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ के बारे में और उसके बाद इल्म नहव में जुमला के बारे में। ये तीन जो है बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चौथा नंबर जो है वो है किसका? बयान, इल्म बयान। तो इल्म बयान में लफ्ज़ों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। अब अभी तक हमने पढ़ा कि हर्फ से मिलकर के लफ्ज़ बना, लफ्ज़ से मिलकर के जुमला बना। अब जब हमारा जुमला तैयार हो चुका है तो उस जुमले में जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, या हमारा एक जुमला है तो कौन सा जुमला हम कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इल्म बयान में बताया जाता है। और पाँचवा जो नंबर है वो इल्म अरूज़ का है। तो इल्म अरूज़ में नस्र के बरअक्स शेर, इसका ताल्लुक़ शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। हम लोग जो अशार पढ़ते हैं तो अशार देखते हैं कि एक शेर दूसरे शेर के वज़न पे होता है, तो वो किस तरीके से एक दूसरे के वज़न पर होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो बात की जाती है, उन सब उसूलों और ज़वाबित के बारे में जो हमें पढ़ाया जाता है, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं अशार को, तो वो इल्म अरूज़ में हमें पढ़ाया जाता है। तो हमें यहाँ पे याद रखने की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक सवाल तो ये कि उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं। तो उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं। कितने अज्जा हैं? 5 अज्जा हैं, समझे। और उसके बाद कौन कौन से हैं? वो है, एक है इल्म हिज्जा, दूसरा इल्म सर्फ़, तीसरा इल्म नहव, चौथा इल्म बयान और पांचवा इल्म अरूज़। हमने ये भी बता दिया कि इल्म हिज्जा में क्या होता है और इल्म सर्फ़ में क्या, इल्म नहव में क्या होता है, इल्म बयान और इल्म अरूज़ में क्या होता है। इन सब के अलावा उर्दू कवायद में जिन चीज़ों की बात की जाती है वो इमला के बारे में बात की जाती है और तलफ़्फ़ुज़ के बारे में, औक़ाफ़ के बारे में। औक़ाफ़ से मुराद आप ये समझ सकते हैं, जो आप जब हिंदी या इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं, जो फुल स्टॉप या कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको उर्दू में औक़ाफ़ कहा जाता है। तो उनके बारे में भी उर्दू कवायद में बहस की जाती है। अब आगे जो है हमारा वो है हर्फ, कि हर्फ किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। तो किसी ज़बान की, किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? हर्फ है, या हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। तो कोई भी ज़बान जब हम बोलते हैं तो उस ज़बान में जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वो छोटी इकाई क्या कहलाता है? हमारा हर्फ कहलाता है। जैसे हमने किताब बोला, क्या लिखा हमने? किताब। अब यहाँ पे हमारा जो है वो ये किससे मिल कर के बना हुआ है? काफ है, ता है, अलिफ है और बा है। तो इस ज़बान की देखिए ये 4 इकाई है, तो इनमें से हर एक इकाई जो है वो क्या कहलाएगा? सबसे छोटी इकाई, और यही क्या है? हर्फ है। तो एक तारीफ़ तो ये कहते हैं कि किसी भी ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है क्या? हर्फ कहलाता है। फिर ये कि दूसरे तौर पर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे ज़बान से जो कुछ भी आवाज़ें निकलती है, उन आवाज़ों की तहरीरी अलामत जो होती है वो क्या कहलाते हैं? हर्फ कहलाते हैं, समझे। तो दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। मसलन जैसे हमने काफ बोला, काफ हमारी ज़बान से एक आवाज़ निकली, अब इसको हम क्या कहते हैं? तहरीरी तौर पर एक शक्ल जो देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है?
हर्फ कहलाता है। जैसे ये है काफ, हमने बोला था, अब पता नहीं था हमें कि काफ लिखा किस तरीके से जाएगा, तो उसको हमने एक तहरीरी शक्ल दे दिया कि इस तरीके से लिखा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? हर्फ कहलाएगा। तो हर्फ के बारे में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि हर्फ जो होता है हमारी ज़बान, जैसे क ख ग घ है, तो क क्या है? एक हर्फ है। इसी तरीके से अलिफ बा ता सा हमारी ज़बान की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? हर्फ है। या हमारी आवाज़ की जो तहरीरी अलामत की शक्ल में हमारे सामने लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। अब उन्हीं हरूफ के मजमूए को, हरूफ के मजमूए को क्या कहा जाता है? हरूफ तहज्जी कहा जाता है। ये उन्हीं हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। जिस तरीके से हिंदी में वर्णमाला होता है क से लेकर के बिल्कुल लास्ट हर्फ तक, इसी तरीके से ए से लेकर के जेड तक जो होता है वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और हिंदी में वर्णमाला। तो उसी तरीके से उर्दू में भी जो हमारे हरूफ होते हैं उस हरूफ के मजमूए को हम लोग क्या बोलते हैं? हरूफ तहज्जी बोलते हैं। ये याद रखिएगा। अब ये कि उर्दू में हरूफ तहज्जी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। उर्दू में हरूफ तहज्जी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक है हमारा मुरक्कब, एक होता है मुफरद और दूसरा होता है मुरक्कब। मुफरद हरूफ तहज्जी और दूसरा मुरक्कब हरूफ तहज्जी। तो सबसे पहले जहां आप मुफरद और मुरक्कब के माने समझ जाएंगे तो आपके लिए ये समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब देखिए कि मुफरद के माने क्या होता है? अकेला, तन्हा। मुरक्कब के माने जुड़ा हुआ। तो अब जब हम हरूफ तहज्जी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, ये जितने भी हरूफ हैं या तक, तो ये हरूफ जो हैं ये तने तन्हा है। अलिफ अकेला तन्हा है, किसी दूसरे हर्फ से नहीं मिला हुआ है। बा, पा, ता, ये जितने भी देख रहे हैं ये सब तने तन्हा है। तो जो भी हरूफ अकेला और तने तन्हा हो तो वो क्या कहलाएगा? हरूफ तहज्जी कहलाएगा। हरूफ तहज्जी में कौन सा कहलाएगा? मुफरद कहलाएगा। लेकिन वहीं उसके मुकाबले में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो दो हर्फ से मिल कर के बनते हैं। जैसे बे में है लगा भे, तो ये किससे किससे मिल कर के बना हुआ? ये हुआ बे और उसके बाद ये हुआ दो चश्मिहा, इन दोनों को मिला करके हम बनाते हैं भे। समझे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो हर्फ से मिल कर के बना हुआ है। जाहिर सी बात है दो हर्फ से मिल कर के बना है तो ये क्या कहलाएगा? मुरक्कब ही कहलाएगा। मुरक्कब के माने ही होते हैं जुड़े हुए, तो ये दो हर्फ से जुड़ कर के बना हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी हरूफ होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? मुरक्कब हरूफ कहलाएंगे। भे, पे, ते, ठे, जे, झे, छे, उसके अलावा धे, ढे, अड़े, अड़े, खे, घे, ले, में, नु, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। इसके मुकाबले में अलिफ से लेकर के या तक जो हैं ये मुफरद कहलाते हैं। अब सवाल ये पूछा जाता है कि मुफरद हरूफ तहज्जी कितने हैं? तो मुफरद हरूफ तहज्जी जो हैं ये 36 हैं। और मुरक्कब हरूफ तहज्जी कितने हैं? तो मुरक्कब हरूफ तहज्जी जो हैं वो 15 हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखने की चीज़ें जो है वो ये कि एक तो ये कि हर्फ किसे कहते हैं? तो हर्फ किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। दूसरा है कि हरूफ के मजमूए को क्या नाम दिया जाता है? तो हरूफ के मजमूए को जो नाम दिया जाता है वो हरूफ तहज्जी है। फिर हरूफ तहज्जी कितने तरीके के होते हैं? हरूफ तहज्जी दो तरीके के होते हैं, मुफरद हरूफ तहज्जी और मुरक्कब हरूफ तहज्जी। फिर ये कि मुफरद हरूफ तहज्जी की कितनी तादाद है? तो मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 36 है और उसके बाद मुरक्कब हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 15 है। बस ये चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब यह है कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ की किस्में, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ की किस्में, तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज, ऐसे हरूफ हैं जिन हरूफ के तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलग अलग किस्में बन जाती हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में पढ़ें। ये वीडियो हमारा थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है तो इस वजह से हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब इसी तरीके से हम डेली हरूफ के बाद लफ्ज़ के बाद जुमला, ये इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ
इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उर्दू कवायद के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाएं। तो इंशाल्लाह कल हम तलफ़ुज़ के एतबार से हरूफ की किस्में जो है उन सब को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो और एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिले। शुक्रिया।